ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੈ, ਦੁਲਹਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ। ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚੌਹੂ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰਿਓ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ। ਰਹਾਉ ਸ਼ੰਖ ਚਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਜਿਤ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਿਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ। ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ, ਰਾਜ ਭੀਖਨ ਅਦਕ ਕਰਿਓ। ਨੌ ਨਿਧ ਠਾਕੁਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ, ਧਰੂ ਅਟਾਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ। ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸ਼ਵ, ਅਜਹੂ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1105 ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਥ ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਸਾ ਮੈਥ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ 1 ਆਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫ ਆਖੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦਸਾ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਓਅੰਕਾਰ, ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਤ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਢਾਂਚੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਚੱਲਣਗੇ, ਬਿਖਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਏ ਤਉ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਉਪਜਣਾ, ਬਿਨਸਣਾ, ਜੰਮਣਾ, ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਹਸਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਉੱਠਣ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ,
साडी आस्था, साडी शरधा, साडे प्रेम दा, साडे समर्पण होने का टिकाणा ही एक हो जाता है, तो असीं वख-वख हुंदियां होइयां भी एक हुंदे आ। वख-वख हुंदियां होइयां भी एक सांझी तंद है जिहड़ी सानूं जोड़ी रखदी। इस तरह गुरु ते सिख दे विचकार इक्को ही चीज़ है, वो है गुरु का अनुभव। जदों सिख कमा लैंदा ते सिख गुरु रूप हो जाता। भावें शरीर दो रहिंदे हैं, परसनैलिटीज़ दो ने, वखरियां वखरियां ने। तो शब्द का जो सिरलेख है वह है कबीर का शब्द, राग मारू बाणी नाम दिओ जी की। जदों मैं सिरलेख नूं पढ़ रहा सा तो मेरे मन अंदर भी एक बार थोड़ा जिहा दुचित्तापन आया। कबीर का शब्द है, अगे लिखा है राग मारो बाणी नाम दिओ जियो की। पर इस तो अगला शब्द जदों तुसीं वेखदे हो ना, हाँ मोस्टली गुरु ग्रंथ साहब विच बहुतात वार इह होया है, क्योंकि बाणी लिखण दी भी सतगुरु महाराज की एक कला है, एक तरतीब है। जदों भी किसी राग की समाप्ति होने तो पहला भगतां की बाणी आउंदी है, ते भगतां विच भी सब तो पहला भगत कबीर साहब की बाणी आएगी, फिर भगत नामदेव साहब की जे उस राग विच है तो आएगी, फिर भगत रविदास साहब महाराज की आएगी, फिर बाकी भगतां की लड़ीवार तरतीब इस तरह है गुरु ग्रंथ साहब। पर कई जगह के उत्ते तरतीब जिहड़ी है इस विच हजूर ने कुछ बदली भी की है। उसनूं असीं कहने भी प्रकरण मुताबक जिहड़ा शब्द सतगुरु नूं लग्या भी ये शब्द तरतीब चों कढ के प्रकरण विच पा देना चाहिए। फिर समझो इस चीज़ नूं, जिहड़ी बाणी लिखण दी तरतीब है उस तरतीब विचों उस शब्द नूं कढ के कॉन्टैक्सट मुताबक, जिन्हों आप कहने संदर्भ गल ना टुट जाए, उपदेश की लड़ी चलती रहे, उहदे विच भी किते किते तरतीब नूं तोड़ के खंडित करके सतगुरु ने प्रकरण मुताबक शब्द नूं दर्ज कर दिता है। तो हालांकि कबीर साहब जी के शब्द पहलों आ चुके हैं, पर इत्थे उन्होंने क्योंकि अगे भगत नामदेव साहब की बाणी आरंभ हो रही सी, तो इसलिए सिरलेख तो यही सी, बाणी राग मारो बाणी नाम दिओ जियो की। पर क्योंकि नामदेव साहब जी का एको शब्द राग मारू चाहे, तो इस तो अगे भगत कबीर साहब का फिर दोबारा शब्द उन्होंने दर्ज किया है, उत्ते सिरलेख विच ये जरूर लिख दिता कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम दिओ जी की। तो रहाऊ के बंद वाल परतीए, जो इस शब्द का सेंट्रल आइडिया है, मुख भाव है, केंद्री नुकता है। फरमाउंदे हन राजा राम जपत को ना तरियो। कौन है जो सर्वव्यापी परमेश्वर जिसकी सत्ता चल रही, राजे का भाव हुंदा जिहदी कोल सत्ता है। राजे का भाव फिर समझो, राजा जिस दे कोल सत्ता है, जिस दे कोल ताकत है, जिस दे कोल पावर है, जिस दा हुक्म चलता है किसी खेतर में, उन्होंने आप कहने राजा है। राजा होना एक बादशाहत, एक पोलीटिकल पावर का चिन्ह है साडे इतिहास जां साडे इर्द गिर्द। इनू आप सॉवरनटी भी कहने, आज़ाद हस्ती, प्रभु सत्ता, जिसका अपना सिक्का चलता होवे, जिसकी अपनी मोहर वैलिड होवे, ते जिस दी अथेंटिसिटी नूं दुनिया प्रवान करती होवे, जिहदे कोल पावर है, वो बंदा प्रभु सत्ता का अधिकारी मन्निया जाता। ये सारियां चीज़ां प्रभु सत्ता संपन्न मन्निया जांदियां। इसनूं खुद मुख्तियारी भी कहा जाता है कि राजा तो एक खुद मुख्तियार हस्ती है। तुसीं बाणी विच पढ़ोगे अकाल पुरख नूं पातशाह भी लिखा ते राजा भी लिखा, को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाचा। भी दुनिया दियां बादशाहियां जड़ियां ने उन्हां दियां आपोजिशनां ने, दुनिया च कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं, कोई ऐसी पोलीटिकल हस्ती नहीं जिहदी आपोजिशन ना हो। अज डेमोक्रेटिक सरकारां ने वोट नाल बनदियां, अज भी इन्हां दी दूजी धिर मौजूद हुंदी है। जिस वेले वोट नाल राजे जां बादशाह नहीं सन चुने जाते, उदों भी आपोजिशनां हुंदियां सन और घरां चों ही निकल आउंदियां, बाहरों नहीं सन आउंदियां। बाहर दा तां कोई विरला ही आ करदा सी बगावत करन दी, उहनूं पता सी मेरा हशर की होएगा।
एक बादशाह दे 4 पुत्र ने, तो चारे ही अपनी अपनी जगह ते कशमकश आपोजिशन विच रहिंदे सन कि तख्त मैनू मिले। नहीं मिलिया तो उन्होंने आखिरी साह तक यतन करी जाना भी किसी तरह इनू ढा के असी इहदी जगह ते काबज हो जाए। आपोजिशन हर जगह रहिंदी है। तुहाडे विरोधी ख्यालों वाले जो तुहाडी सत्ता नू प्रवान नहीं करनगे। तो गरीब नवाज सतगुरु महाराज जदों परमेश्वर नू राजा कहते हैं तो उसका मतलब है प्रभु सत्ता संपन्न है, खुद मुख्तियार है। और कमाल की गल उहदी आपोजिशन भी कोई नहीं, कोई उहदी विरोधता करने वाला ही नहीं। और उसकी अटल पदवी नू, उसके हुक्म नू, उसके हुक्म की बरखिलाफी करने वाला कोई है ही नहीं, उन्होंने खतरा भी कोई नहीं। इसे करके उन्होंने बाणी विच निरभौ निर्वैर लिखा, उन्होंने डर ही कोई नहीं। तो जिसनों डर कोई नहीं वह वैर भी किसी नाल नहीं। तो हजूर सच्चे पातशाह जी उसनों आखते ने राजा राम। राम का अर्थ है रमिया होया। मैं अगे भी बिनय की है, फिर भगत जी की बाणी के इस शब्द को विचारद्या फिर ये नुकता साझा कर लवां। भगत जी ने प्रचलित शब्द अपनी बाणी च वरते ने। बीठल भी वरत्या, विष्ण भी वरत्या, गोवर्धन भी वरत्या, ऋखिकेश भी वरत्या, हरि भी वरत्या, करीम रहीम अल्लाह पाक सारे शब्द वरते। पर यह समझण वाली गल है कि गुरबाणी विच ये शब्दों की वरतों जिहड़ी वो निर्गुण स्वरूप सर्व संपन्न सारी कुदरत नूं पैदा करने वाला ते सबना विच जो व्यापक है, उस लई इन्हां शब्दों की वरतों हुई है। किसी दुनियावी शरीरधारी पुरख लई इन्हां शब्दों की वरतों बाणी विच नहीं हुई। गुरबाणी किसी व्यक्ति विशेष की शोभा विच नहीं है। निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरू जिसका रूप रंग आकार चक्र चिन्ह कोई नहीं, जो सर्वव्यापी है, सदीव काल अटल ते कायम रहने वाला है, उसकी सिफत सलाह दे विच ही सतगुरु ने समुची समग्र बाणी रची है। पर शब्द सानू दुनियावी जड़े प्रचलित ने वही वरते। जे मैं एक उदाहरण देना, भाई कान सिंह नाभा एक नुकता साझा करते हैं, कहते अल्लाह शब्द इस्लाम दे विच एक परवदगार परमेश्वर लई वरत्या जाता। इस्लाम दे इस धरती ते प्रगट होने तो पहला ये अल्लाह शब्द एक मूर्ति लई वरत्या जाता सी। हुण कोई वक्त सी जो अल्लाह शब्द एक मूर्ति लई वरते, एक देवते लई वरत्या जा रहा है। पर जिस वेले इस्लाम होंद विच आया लफज उन्हें उही पिक कीता है, पर उहदी एक्सप्लेनेशन उन्हें अपनी दी। उन्हें कहा अल्लाह पाक कोई देवता नहीं है, वो सब तो वड्डी वाहिद एक सत्ता है, ताकत है। हुण शब्द तो वही है ना। जे मैं उदाहरण देना, आप जिन्नी संगत तो एक नाम दे हो सकता है 4 बंदे संगत विच बैठे होण, पर तुसी नाम करके उन्हां 4 परसनैलिटीज़ नूं रला थोड़ी दिओगे। हर एक दी अपनी आइडेंटिटी है, हर एक दी अपनी पछाण है, हर एक दा अपना व्यवहार है, हर एक दा अपना जीवन ढंग है। पर ना 4 बंदियां दा इको ही हो सकता है। ऐसा भी वापरदा कई बार। इसे तरह नाम दा रल जाना स्वरूप दा रल जाना नहीं है। जे 2 नाम वाले एक नाम वाले 4 बंदे होणगे तो जरूरी नहीं चाहुंदा चेहरा मोहरा ते वरतों व्यवहार ते उन्हां दा हर तरीका जिंदगी जीउण दा रलदा। तो राम तो भाव है रमिया होया परमेश्वर, रमत राम सब रहो समाए। हजूर कहते ने ऐसे रमे हुए परमेश्वर की याद विच जुड़ के किहड़ा जिहड़ा तर नहीं सकता, किहड़ा जिहदा भला नहीं हो सकता। भाव हर कोई प्राणी जिहड़ा अपना भला कर सकता है जे उस परमेश्वर वाहिगुरू दे दसे राह ते उहदी इबादत करदे उहदे गुणां नाल उहदे हुक्म विच चल के अपने जीवन नूं सवार लै। ते नाल ही व्याख्या हजूर ने कीती। पातशाह कहंदे ने गोरे उपदेश साध की संगत, जिहड़ा गुरु की संगत विच आके गुरु के उपदेश नूं कमाउंदा है। 2 शब्द आउणगे बाणी च, साध संगत ते सत संगत। साध तो भाव है गुरु, गुरु की सोहबत, गुरु की नेड़ता विच आउणा, गुरु की संगत विच बैठना। ते सत संगत का भाव गुरु किस नाल जोड़दा है? सच नाल। जदों तुसी गुरु दे नेड़े हो के सच नूं प्रणाए जाते हो तो तुसी सतसंगी हो जाते। पहला स्टैप हुंदा है गुरु कोल आउणा, गुरु दे नेड़े होना, गुरु राही एक सच नूं जानना ते उस सच नूं प्रणाए जाना, समर्पित होके जीवन विच धारण कर लेना उन्होंने सत। ये दोवां शब्दां च सूखम जिहा भेद है, यानी कि इन्हूं स्टैप कह लो। पहला स्टैप है साध संगत, दूजा स्टैप है सत संगत। सतसंगी
बन जाना, सुरत विच सच दा टिक जाना, फिर सच दी हजूरी नूं हर वेले माणदे रहना। तो गरीब नवाज पातशाह कहंदे ने गुर उपदेश जिहड़ा गुरु दे उपदेश दी कमाई करदा है साध संगत राही, गुर उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परियो। जिहड़ा साध संगत विच जुड़ के गुरु उपदेश नाल सांझ बना के सतगुरु की सिक्ख्या सतगुरु की मत नूं धारण करता है, ਉਹਦਾ जीवन इन्ना उचेरा हो जाता है कि सतगुरु कहते हैं भगत भगत ताको नाम परियो, ਉਹਦਾ नाम भगत पै जाए। भगत भगत दुनिया उसनूं कहती है, भाव वो भगती वाली आत्मक उच्ची अवस्था तक पहुँच जाता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा सी, उस विच उन्होंने संवाद लिखे ने, हर एक दुनिया के तमाम धार्मिक महापुरखों की दुनिया नाल होई गलबात नूं कुछ लोगों ने अपने अकीदे मुताबिक विश्वास मुताबिक कलमबंद किया। कहते ने सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज छेवें पातशाह, जिन्हां दा परसों के रोज़ आपां गुरता गद्दी दिवस भी मनाया है। वेखो कितनी महान गल है गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दी। गुरु अर्जन साहब अमृतसर की धरती तो जिस वेले उन्हां दी गिरफ्तारी के आर्डर होए लाहौर तो सतगुरु चल पे। हजूर ने अमृतसर त्यागण तो पहला गुरता गद्दी की दात अपने इकलौते साहिबजादा हरगोबिंद साहब जी को बख्शी तो गुरु पदवी ते सुशोभित होए। गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी सिख इतिहास में एक बड़ी वड्डी अलौकिक बेमिसाल और लामिसाल घटना है। हजूर के तन के उत्ते अनेकों तरह के उन्होंने कष्ट ते तसीहे दिते गए ते शहीद किया गया। ये गुरु पातशाहां दे विचों पहली अलौकिक शहादत है जिहड़ी सिख इतिहास के दरपेश और सामने से। गुरु हरगोबिंद धन गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी तो बाद दो तरह दी सिचुएशन, दो तरह का माहौल सिख पंथ के सामने आ सकता है। ध्यान में रखने बड़ी ध्यान देने वाली गल है, जिस उत्ते साडे आगू जदों अमल करते रहे तो असीं वड्डे घल्लूघारियां विचों निकल के भी स्टेबल रहे, सहज विच रहे, तो जदों इस नुकते नूं साडी कौम दे राहनुमा भुल गए तो असीं दर बदर ठोकरां खाण लई मजबूर भी होए। क्योंकि असीं जिन्ना चानण लैना है गुरु साहब की शख्सियत चों ही लैना ना, गुरु साहब के जीवन चों ही लैना। इस ख्याल नूं समझण दा यतन करियो। इसे ख्याल विच ही साडी कौम की जिंदगी चढ़दी कला ते ढैंदी कला दोवें रस्ते लुके होए। धन गुरु अर्जन साहब जी की शहादत हुई, उस तो बाद दो तरह की भावना सिख पंथ विच जोर फड़ सकती सी। पहली, इस घटना के उत्ते सिखां विच इन्ना वक्ती गुस्सा पैदा हुंदा कि वह सिद्धम सिद्धा सरकार नाल टक्कर लैंदे ते सरकार ये चाहुंदी सी ते वह सिखां दा बेतहाशा जानी माली नुकसान करके सानू तबाही के कंढे उत्ते खड़ियां कर दें। एक पासे स्थापत धेर है जी मुगल शाही, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इन्ना वड्डा अपना ताम झाम खड़ा किया होया, इन्ना मुगल अंपायर इन्ना वड्डा है, उहदे कोल बेतहाशा ताकत है। ते गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी तो बाद सिखां दे मन विच गुस्सा आउंदा, वक्ती गुस्सा इन्ना जोर फड़ लैंदा कि वह जिथे जिथे सन उत्थे उत्थे बगावतां पैदा कर देंदे कि साडे गुरु नाल तुसीं इदां कीता, जां असीं रहांगे जां तुसीं रहोगे। इहदा रिजल्ट की निकलदा उड़क नूं? तबाही, बर्बादी। तो फिर सिख ये भुल जाते, चेते च रखना ये भुल जाते भी जे पहला स्टैप लड़ना ही हुंदा तो धन गुरु अर्जन साहब गिरफ्तारी ना देंदे। वो सिखां नूं आर्डर करते भी हुण मैनू गिरफ्तार करन आ रहे हैं, हथियार चुक के आपां लड़ना है, तो गुरु के हुक्म ते किहड़ा सिख ना आउंदा? जां तां ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती सी। दूजी ये सी भी जे सिखां नूं ये लगदा भी असीं लड़ नहीं सकते समय की मुगलिया हुकूमत नाल, ये तकड़े लोग ने जिन्हां ने साडे गुरु साहिबान ते इहदे जुल्म कीते, असीं की पाणी हारां, वो ढैंदी कला दे उस आलम विच जा डिगदे जिथों उन्हां नूं सदियां तक कढना औखा हो जाता। उन्हां दे अंदर इन्नी हीन भावना पैदा हो जाती, वो अपने आप नूं कोसदे, वो अपने आप नूं दोष देंदे। चेते रखना जेड़ी धेर कोई लड़ाई जां जंग हार जाए ना, उत्ते पहला इफैक्ट पता की पैंदा है, वो खुद नूं दोष देना शुरू कर देंदे।
असीं गलत सां, असीं गलत सां। और साडे विच ही बंदे बैठे हुंदे ने जिहड़े सानूं ही बार बार गालां कढदे रहणगे। वो ये नहीं कहणगे एक धिर ने जुल्म कीता साडे, वो कहणगे साडीआं ही गलतियां। ये बड़ी वड्डी बीमारी मानसिक आत्मक लग जाती है किसी धिर नूं, जिहड़ी किसी मुहाज ते वक्ती जंग हार जाए। हारना जितना ये संसार की खेड है, पर यह रोग ला लेना बड़ी माड़ी गल है। सदियां तक नहीं निकलता अंदरों। सानू भी लगा होया अज दे दौर में रोग, बीमारी ने साडा खड़ा छड्डिया नहीं। जिथे 4 सिख जुड़नगे ना 3 दोष देने वाले होणगे, एक बंदा प्रोटैक्ट करने वाला होएगा। तुसीं किते भी वेख, वो कहणगे साडियां गलतियां, सानू आ नहीं सी चाहिदा, साडे बंदे इवें कर गए। अच्छा खाई असीं कुट जानी हुंदी है, ते कई फिर भी ये जाना हुंदा साडी गलती, सानू कुटो साडी गलती। इस बीमारी का की हल है? कोई हल नहीं। तुसीं अपने जख्मां की गल भी ना करो दुनिया सामने, ते ये कहो भी ये जिहड़े जख्म लगे ने मेरे लगने ही चाहिए सन, मैं इसे हाल में ही रहना, ये मेरा कर्म बनता है, मेरी किस्मत बनती है। इनू गुलामी कहते हैं जी। ये गुलामी का ही एक बड़ा करूप रूप हुंदा है जिहड़ा साडे सामने प्रगट हो जाता है। तो सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के सामने 2 तरह की सिचुएशन सी जिहड़ी उन्होंने गुरता गद्दी ते बैठदे इनू हैंडल करना सी। पर अशके जाइए सतगुरां दे, उन्होंने कौम नूं ना वक्ती गुस्से विच झोंकिया ते ना ही उन्होंने पंथ नूं हीण भावना विच ढैंदी कला दे आलम विच गवाचण दिता। उन्हां स्टेबल करके रखिया ते सिखां दे अंदर दा समय दी मुगलिया हुकूमत दे प्रति जिहड़ा क्रोध सी, उस क्रोध नूं महाराज ने एक बालन वांग वरतिया। उन्होंने वीर रस विच ढाल के 4 जंगां वड्डियां महाराज ने लड़ियां, 4 च ही सिख जित गए। कमाल है किसी की दुकान भी टुटी होवे, कमाल है किसी मनुख दे धौड़ धप्पा भी हो, एडी वड्डी घटना सिखां विच वापर गई, सिख शांत रहे। क्यों रहे? क्योंकि सिख अपनी केंद्री सत्ता गुरु नाल जुड़े हुए सन। उन्हां दे अंदर इको ही ख्याल सी, गुरु जो हुक्म करेगा उस उत्ते फुल चढ़ा देना। जे सतगुरु आखेगा टिक जाओ, टिके रहांगे। जे सतगुरु आखणगे मैदाने जंग च उतरो, उतर जावांगे। पर गुरु के हुक्म तो बिना ये अपनी मनमर्जी नाल ना अपना गुस्सा ज़ाहिर करांगे, ना अपने क्रोध के लावे नूं अंदरों कढ़ के दुनिया नूं उहदे च झुलस। साडा ते धर्म ही सरबत दे भले दा धर्म है ना। सानूं पछाण होनी चाहिदी है कि साडी जंग, साडी लड़ाई किस व्यक्ति दे नाल है। ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की एडी वड्डी रहमत है साडे उत्ते, एडी वड्डी किरपा है साडे उत्ते। और किन्नी महान चोण सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने की। सचमुच ही महाराज की चोण तो सतगुरु महाराज ने जो सिलैक्शन की है, उस तो सदके जाण नूं जी करदा। किड्डे पाएदार उन्होंने इकलौते साहिबजादे आगू सन, जिन्हां ने कौम नूं एडे वड्डे दुखांत भरे माहौल दे विचों भी एन टिका विच, सहज विच, बैलेंस विच रख के पंथ नूं वो पाण चाढ़ दिती कि सदियां तलक के कौम जिउंदी है। तो जदों असीं इतिहास नूं इवें विचारांगे, बहुत कुछ साडी समझ विच पएगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं किसी ने एक बार ये प्रश्न किया, महाराज भगत दे की अर्थ हुंदे ने? कहण नूं तां सारे ही भगत ने दुनिया च। जिहड़ा भी धर्म स्थान ते जांदा है, तीरथ ते जांदा है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़दा है, कोई धर्म पहरावा पाउंदा है, कोई दान देंदा है, कोई पूजा कर, सारे ही भगत ने। हर कोई कहंदा मैं फलां दा भगत हां, मैं फलां दा भगत हां। महाराज इवें तां असल भगत की पहचान होनी ही औखी हो जाएगी। तो सतगुरु ने आख्या समझाउण दा ढंग। महाराज ने आख्या पहला स्टैप हुंदा है, एक किस्म दे वो लोग हुंदे ने जिहड़े अपने आप नूं खवाउंदे ते भगत ही ने, पर वो कामना वस कोई कर्म कर रहे होंगे। कामना वस मान लो उन्होंने कोई चीज़ चाहिए है, कोई पदार्थ की थोड़ है, कोई कारोबार की लोड़ है, वो चाहते हैं कोई पदवी मिल जाए, तो सारा कुछ वो इन्हां चीज़ां करके ही अपने इष्ट नूं पूजदे ने। उन्होंने अपने इष्ट नाल होर कोई लेना देना नहीं हुंदा। जदों उन्होंने किते होर लालच मिल जाए ना भी फलां जगह ते जाण नाल कारोबार बड़ा वधदा है, वो मिनट नहीं लाउणगे, इत्थों उठ के निकल जाणगे। साडे च भी असी बहुत इसे स्टैप ते ही खड़े हैं। खिमा करना कितने % हाँ असी चलो कह के अरदास कराउणी तो वक्री खेड है,
किन्ने परसेंट हाँ असीं जिहड़े खुद सतगुरां दे चरनां च अरदास करदे हां, महाराज सिੱਖੀ दान ते नाम दान बख्शो। मैं इस लई बाणी पढ़दा, माफ़ करियो, असीं इस लई पढ़दे हां भी कारोबार चल पवे। वो तो नास्तिक दा भी चल रहा है, जिहड़ा गुरु घर नहीं आउंदा उहदा भी चल रहा, माफ़ करना, चलदे ही रहणगे। तां कुदरती खेड है, वरतारा है जी समाज दा। मैं ये नहीं कहंदा भी कारोबार वधण ना, इहदा भाव बिल्कुल ना लियो। सतगुरु ने तां सानू पदार्थ तो तोड़िया ही नहीं, पदार्थ नूं सुरत विच टिकाउण तो मनाही कीती। मोती तां मंदर उसरै, रतनी तां होए जड़ाओ आखे। सिख कोल हर चीज़ होवे क्यों ना, पर इस स्टैप उत्ते ही खड़े रहना। इसलिए असीं बहुते गिला भी करते, मैं इन्ना चिर पाठ किया, गुरुद्वारे गया, मैनूं आह चीज़ तो मिली नहीं, की फायदा होया। उत्थे फिर आ भी स्टेज आउंदी है, जदों आ स्टेज आउंदी तो उदों समझ पैंदी है भी बंदा बिल्कुल एक चीज़ उत्ते टिकिया खड़ा सी, काम चल पे, पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, गुरु की लोड़ केवल इस करके, बाकी कोई लोड़ नहीं। ये पहले स्टैप ते खड़ा बंदा है। जिहड़ा अपने इष्ट नाल जुड़िया ही इस करके है भी उन्होंने पदार्थ चाहिए, उन्होंने वस्तु चाहिए है, वो भाणा किवें मन्नेगा? जदों कुछ ना रहा कोड़, किवें गुरु का शुक्र करेगा? नहीं कर सकता। वो गुरु नूं गालां कड्डेगा, माफ़ करियो, गिला करेगा। वो आखेगा रब ने मेरा बेड़ा गर्क किया, वो आखेगा रब ने मेरे नाल धक्का किया। वो रब नूं भी मंदा चंगा बोलेगा। जिस दी इबादत विच वो अरदासां करदा रहा, उहनूं बुरा लगन लग जाएगा, क्योंकि पदार्थ विच खड़ा। ते दूजा स्टैप उन्होंने आख्या आरत। आरत का मतलब हुंदा है जिहड़ा दुख तो घबराउंदा है। एक तो सुख की कामना, एक दुख तो घबराउंदा। वो इस करके डरिया होया ही मन्नी जाता है भी जे मैं ना मन्निया तो पता नहीं ये गुस्से हो के मेरा की नुकसान। आपां बहुते पिंडां थावां दे पंजाब दे ही रहण वाले हाँ, उत्थों ही आए हाँ, तो आपां नूं पता है बहुती थाई आपां मत्थे ते प्रशाद इसे करके ही चढ़ाई जाने सा भी ये बाबा रुस ना जाए। वो डरे ही असी उत्थे अपने आप ही जाके अखां नीवियां करके सिर झुका लेंगे। लोग कहते सन जे इहनूं मत्था ना टेकिया बीमारी लग जाती, खौरे आप वो किवें मरिया होएगा। लोग कहते सन जे इस तरह ना कीता ते ये तुहाडे कोल सारा कुछ खो लएगा। आप वो दुनिया च रहा नहीं, असी उहदी कबर उहदी मड़ी पूजते रहे, ये सोच के भी खौरे इन्हें की कर देना। जिन्हों आप रब की मार बचा नहीं सकी, वो सानू डराउंदा रहा ते असी डरते रहे। वो जिहड़ी भगती असी करते रहे, वो जिहड़ी उपासना असी करते रहे, वो सहम दे माहौल च ही करी गए। डर दे माहौल, वो डर साडे अंदर बैठा सी, वो भै ही सानू झुकण लई मजबूर करता रहा। ते तीजा उन्होंने लिखा है उपासक। उपासक का अर्थ है जिहड़ा ना पदार्थ चाहुंदा है, ना उन्होंने कोई डर है, बस वो इस तरह कर्म ते कर्म करी जा रहा है। उन्होंने समझ नहीं पैंदी भी मैं क्यों कर रहा, उन्होंने अगला मकसद कोई चेते नहीं आता। तो चौथे की स्टेज उन्हें सब तो उत्तम दसी, जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च है। उन्होंने क्या है तत्वेता, आत्मदर्शी, ज्ञानी पुरख, जिहड़ा अपने वजूद विच परमेश्वर नूं महसूस करता है तो उहदियां वडियाइयां ते बख्शिशां दे सामने न्यो जाता है, झुक जाता है। जिहड़ा आखदा है जे भुख दें तां इत ही राजां, दुख विच सुख मनाए, इस कदर जिहड़ा समर्पित हो जाता है। तो हजूर कह रहे हैं भगत भगत ताको नाम परियो, से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता। तो आरंभ के वाक विच भगत जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। चार मुक्ति दियां भी चार किस्मां मन्नियां ने भारती लेखकां ने। चार मुक्त, चार है सिद्ध, चार किस्म दियां सिद्धियां की व्याख्या की है। पर भगत जी कहते हैं ना मैं चार किस्म दियां मुक्तियां विच यकीन करा, ना चार किस्म दियां सिद्धियां दा पिछलग बना। मेरे लिए इको ही थां है, मैं समझदा दुनिया दियां सारियां बरकतां ते बख्शिशां उहदे कदमां विच ने। चार मुक्त चारै सिद्ध मिलकर दूल्हा प्रभ की शरण परियो। सब कुछ उहदे चरनां विच, सब कुछ उस वाहिगुरू की सेवा विच ही है। उहदी सेवा ही मेरे वास्ते चार मुक्तियां ते चारे सिद्धियां हैं। फिर फरमाउंदे ने मुक्त भयो चहूँ जुग जानियो। वो जीव अपने आत्मक बंधना तो मुक्त हो जाता है। वो जीव विषय विकार दे इस
खड्ड विचों बाहर निकल आउंदा है। हजूर कहंदे ने चार मुक्त भयो चहूं जुग जाने, वो हर वेले पछाणिया जांदा, दुनिया च उहनूं उसे मनुख नूं ही जाणिया जांदा जिहड़ा इस उच्ची आत्मक अवस्था ते पहुँच जांदा। तुसीं कबीर जी नूं उन्हां दे वपार करके नहीं जाणदे, ना ही उन्हां दे माता पिता करके उन्हां दी पछाण है, ते ना उन्हां दी औलाद करके उन्हां दी पछाण है। कबीर जी दे ना किते ना बरादरी करके उन्हां दी पछाण है। कबीर जी दी पछाण उन्हां दी आत्मक कमाई ते उच्चता करके है, और वो सदा रहेगी। जानी कि उन्हां दी प्रभता किसे सहारे ते खड़ी ही नहीं। कमाल दी खेड है। दुनिया ने आख्या, उन्होंने आप भी कहा कबीर मेरी जात को सब को हसनियार। किसे आख्या ये गरीब बंदा जिन्हें कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, सानू की मत देगा, रब नूं किवें मन्नीदा, ये सानू मुक्ति का राह किवें विखाएगा। किसी ने उच्चियां जात बरादरियां वालियां ने ये निहोरे दिते, आख्या तू आपदी खड्डी ते काम करके रोटी कमा, तू जलाहा सानू उच्चियां श्रेणियां वालियां नूं मत देना जिन्हां नूं ग्रंथ पढ़न दा अधिकार है। ना तू तीर्थ जाए, ना तू शंख वजाए, ना तू देवते पूजे, ना तू मूर्ति पूजा करे, तू कख भी ना करन वाला बंदा सानू दसदा भी धर्म की हुंदा। पर कबीर जी की आत्मक उच्चता ना बरादरी के सहारे खड़ी सी, ना कर्म कांडां दे सहारे खड़ी सी, ना अमीरी गरीबी के सहारे खड़ी सी, ना माता पिता ना औलाद के सहारे खड़ी सी। कबीर जी तो फिर कबीर जी सन, बिल्कुल अपने आप, जिन्हां दी वडियाई। इसनूं भाई सता बलवंड जी लिखते हैं, नाओ करता कादर करे क्यों बोल होवे जोखिम। जोखना शब्द तोलन लई, वेट करन लई वरतदे हैं आपां। जिन्हां दा नामना मेरा परमेशर करदा है, दुनिया की कोई ताकत उन्हां दी वडियाई, उन्हां दी प्रभता नूं तोल नहीं सकदी। वो अतुल हो जांदे, उच्चे हो जांदे। जस कीरत माथै छत्र त्रियो, वाहिगुरू उन्हां दे सिर उत्ते आत्मक उच्चता दा छत्र फिरा दिंदा है। उन्हां दी शोभा, उन्हां दी कीर्ति, उन्हां दा जस सਦੀव काल अटल हो जाता है। दूसरे बंद विच फरमाउंदे ने, हे भाई तुसी उस परमेश्वर नूं शरीर रूप विच कल्प के उस नाल कुछ चिन्ह जोड़ के उसकी शोभा करते हो। संख चक्कर माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरियो। ये हुण ख्याल जे आप जी बाणी पढ़ो, रोज़ पढ़ो तो बहुत छेती समझ विच आउंदा है। गुरबाणी दे विच निर्गुण स्वरूप परमेश्वर की उपासना है, पहली गल। नंबर 2, सतगुरु ने उदाहरणा जरूर वरतियां ने गल नूं सौखे ढंग नाल समझाउण वास्ते। तो उस लई महाराज ने प्रचलित ग्रंथां दी आले दुआले दीयां जिन्हां लोकां विच विचरदे हन उन्हां नूं उन्हां दी उदाहरण विच समझाया। विष्णु दे पुजारी, विष्णु दे ही अगे अवतार होए, राम जी होण, कृष्ण जी होण, होर बहुत अवतार ने। किसी ने 10, किसी ने 24, किसी ने 22 अवतार मन्ने। वक्रे वक्रे ग्रंथां दी अपनी अपनी विचारधारा ते मत है। सतगुरु ने हुक्म नूं श्रोमणी मन्निया। हुक्म अनुसार ही जीव पैदा होंदा है, हुक्म अनुसार ही विचरदा है, हुक्म अनुसार ही खत्म होंदा है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे प्रवाह। तो गरीब नवाज बाणी विच जदों उदाहरण वरतदे हन तो वह परमेश्वर लई वरतदे हन। दुनिया के तथाकथित अवतारां दा इह चक्र चेन मन्निया गया भी उन्हां दे कोल संख है वजाउण वास्ते, चक्र है जो उन्हां दी उंगली उत्ते घुमदा है, दंद धार तेज शस्त्र जिहड़ा सुट के किसी दी गर्दन कट दे। परमेश्वर दा हुक्म रूपी संख सारी कायनात विच लगातार ही गूंज रहा है। वाहिगुरू दा घालक शस्त्र चक्कर सदीव काल हर एक दे उत्ते सिर ते चल रहा है। राजा प्रजा समकर मारे, ऐसो काल बिड़ानी रहे। माड़ा दे मणकियां वांग संसार फिर रहा है, कॉन्टीन्यू चल रहा, खड़ा नहीं अपनी जगह के उत्ते। साडा बचपन नहीं खड़ा रहा, जवानी एक थां नहीं रही, बुढ़ेपा भी नहीं रहेगा, जन्म नहीं रहा तो मौत भी नहीं रहेगी। हर चीज़ चलाएमान है। समझो असी दौड़ विच हाँ, जिस धरती ते दौड़ है, तुसी ट्रेडमिल ते भजदे हो ना, तुसी भी भज रहे होंदे हो, तो ट्रेडमिल का पटा जिहा भी भज रहा होंदी, उहदी बेल्ट भी चल रही होंदी, कोई चीज़ भी नहीं खलोती। जिन्हां पदार्थां दे सहारे असी भज रहे हैं, वो पदार्थ भी भज रहे हैं। हर चीज़ ही अपने आप विच रवानगी विच है, कोई चीज़ थिर नहीं। मैं कल दे दीवान विच बेनती कीती सी
जरा कसी सारे अपनी पिछली पिछली जिंदगी विच झात मारीए, किन्ने साडे नाल जुड़े, किन्ने संबंध जुड़े, किन्नियां सांझां जुड़ियां, किन्ने जीव जुड़े ते किन्ने ही विछड़ गए। ये वरतारा एक बार दा नहीं, लगातार ही चली जा रहा, लगातार। असी किसी दी याद विच जुड़ बैठे हाँ, कोई साडी याद विच जुड़ बैठेगा, ये तो इस तरह ही चलना है वरतारा। ये संसार ना थिर है, ना रहा है ते ना रहेगा। तो गरीब नवाज पातशाह ने इसे बाबत ही सानू सुचेत किया है, समझाया है कि उस वाहिगुरू दा तिलक दा अर्थ है सत्ताधारी दे लई जो ताकत, जो तिलक दा मतलब हुंदा है जिवें कोई तख्त उत्ते बैठण लग्या है तां जिहड़ा धार्मिक आगू हुंदा उहदे मत्थे ते राज अभिषेक उहनूं कहिंदे सन। सत्ताधारी होण लई उहदे मत्थे ते तिलक लाया जांदा सी, उहनूं आशीर्वाद धार्मिक तौर ते दिता जांदा सी, उहदे देवते दे मंत्र पूजा आदि करके। हालांकि सिखां 'च तिलक लवाउण दी रवायत नहीं है, माफ़ करना, पर असीं इहनूं छड्डिया भी नहीं है। तुसीं बच्चे दे शगन दे उत्ते वेखो, कोई मनदा थोड़ी है। जदों तुसीं अरदास विच ही जुड़े हो, महाराज दे सामने जुड़े, जरूरत ते नहीं, पर हुण उस वेले जिहड़ा कहेगा वो बुरा भी बनेगा। असीं कुछ रस्मां छड्ड भी नहीं रहे जिन्हां तो असीं कहीए भी असीं वखरी कौम हाँ, तो वखरता वाला काम करांगे तो वखरे होवांगे, गल्लां नाल ते होया नहीं जाना। तो तिलक दा मतलब राज अभिषेक, सत्ता संपन्न, वो परमेश्वर वाहिगुरू दा तिलक सदीवी है, उसकी सत्ता सदीवी है। देख प्रताप जम डरियो, जिस वाहिगुरू दी हस्ती दे सामने आत्मक मौत ते जम भी कंब जांदे हन। निरभओ भये राम बल गर्जित, जिन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू दे बल दे उत्ते यकीन आ जाता है कि वाहिगुरू दा बल सारी कायनात विच गरज रहा है, वरस रहा है, वो निरभओ हो जाते, वो आत्मक मौत के डर तो मुक्त हो जाता है। उन्होंने परमेश्वर वाहिगुरू तो बिना किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता। जन्म मरण संताप हरिओ, उन्हों का जन्म मरण का संताप, आवागमन का भटकना का जिहड़ा गेड़ है आत्मक तौर के उत्ते, सारा संताप दुख उन्हों का दूर हो जाता। फिर प्रचलित उदाहरण दित्तियां हजूर ने, कहते अंबरीक को दियो भय पाद, राज भभीखन अदक करियो। अंबरीक एक राजा सी, दुर्भाषा ऋषि उहदे कोल प्रशादा छकण गया, तो उसने थोड़ा समा कहते ने पहला प्रशादा छक लिया, तो उन्हें गुस्से में आके दुर्भाषा ऋषि ने उन्होंने श्राप देने लई उन्होंने मारना चाहा, तो भगवान ने अमरीक की बेनती के उत्ते उहदी आप ऐसियां कथा कहानियां ने, है कुछ नहीं, पर गल यह भी एक रिखी इदां गल तो ही गुस्से हो गया कि मेरे तो पहला तो प्रशादा किवें छक लिया। अजीब किस्म का रिखी होएगा जिन्हें सारी तपस्या चो इन्ना सहज रखना भी नहीं सीखिया भी वो किसी नूं प्रशादा छक के इहदे च भी अपनी हतक समझण लग पिया भी मेरी हतक है, तो तुसीं पहला छक लिया। ऐसे ऐसे ऋषि ने। तो हजूर ये भी नुकता नाल सानूं उदाहरण जदों देंदे ने उहदे सर्वपक्षी पक्ष हुंदे ने, जे तुसीं भी इस तरह का ही सारा कर्मकांडी माया जाल विच उलझे रहना है, तो जे इन्ना सहज भी जिंदगी च ना आया तो लाभ कोई नहीं, दुर्भाषा वर्गी हालत ही है। 2 घंटे जे पाठ भी करते हैं तो 1 मिनट च ही बाद उठ के कल्प जाने, तो दुर्भाषा तो साडा की वखरा है। एक पासे हथ विच माड़ा फड़ी, दूजे पासे खिजी जाने, बोल सकते नहीं, पर अंदरों इन्ना कठिनाई चल रहे हैं, लाभ की है? वो चीज़ कमाईए जिहड़ी तुहाडी आत्मा ते दूजे नूं पुर सकून रखे, आनंद विच रखे, सहज विच रखे, तवाजन विच रखे। वो विखावे ना करिए जिहड़े सानूं अंदरों उलझण वास्ते ते घुट घुट के मरन लई मजबूर करते रहन, तो दूजे लिए भी परेशानी का सबब बन, तो वह दिल ही तोड़ देण भी धर्म इहो जिहा हुंदा। असीं बहुतिआं ने एक दूजे के दिल इवें ही तोड़ रखे नहीं, वो धर्म है ही नहीं सी, पर असीं उहनूं मान लिया सी। तो सतगुरु महाराज ने शांत सहज रहस मन उपजियो, इनू धर्म मन्निया भी ये चीज़ नूं जिहड़ी साडे अंदर पैदा करदी है चीज़, वो धर्म है। तो हजूर महाराज इत्थे उदाहरण देंदे ने, अमरीक की रखिया परमेश्वर ने कीती। हे वाहिगुरू, विषय वकार मेरे अंदर इसे तरह का ही दुख ते खतरा पैदा कर रहे हैं, तू भी मेरी रखिया करनहार है। मेरी तो हालत उस अमरीक वर्गी है,
ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਦਿਓ ਅਪਹਿ ਪਦ, ਰਾਜ ਭਪੀਖਨ ਅਦਕ ਕਰਿਓ। ਭਪੀਸ਼ਣ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਲਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਪੀਖਣ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਝ ਗਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇਗੀ ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਗੋਝ ਗਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਂ। ਬੜੇ ਓਹਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਓਹਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਦਿਓ ਅਪਹਿ ਪਦ, ਰਾਜ ਭਪੀਖਨ ਅਦਕ ਕਰਿਓ। ਨੌ ਨਿਧ ਠਾਕੁਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ, ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਸੁਦਾਮਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਪਰ ਝਿਜਕ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਝਿਜਕ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਝਿਜਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਜੇ ਪਾਹੁਲ ਸ਼ਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਝਿਜਕ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਮਿਟਾ ਲਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਗ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਖਵਾਓਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਿਸੰਗ, ਮਨ ਨਿਧਾਨ ਧਾਰੇ। ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਝਿਜਕ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਧਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਏ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਖੋਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇ ਧਰਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਥਾ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੈਂਦੇ,
पर इत्थे ते साडा रिश्तेदार भी नहीं हुंदा, असीं वड्डा वेख के इसे करके चापलूसी कर सुटदे हां भी की फर्क पैंदा। असीं चोर भी साध बना लै, असीं मंदे अमलों वालियां नूं भी गुरमुखां दी उपाधियां नाल निवाजिया केवल चापलूसी की बिरती करके। डिगण दे सुभाਅ ने सानूं इन्ना नीवां सुट दिता भी असीं उच्चियां पवित्र हस्तियां नूं दरकिनार कीता ते खाली खोल जिहड़े सन उन्हां नूं असीं उच्चियां कर लिया। पर प्रहलाद विच इह दृढ़ता सी, उहने आख्या नहीं, भावें तू मेरा बाप है, भावें तू इत्थों दा राजा है, ठीक है तू बाप भी है राजा भी है, तू रब किधरों होया? रब ते जमदा मरदा नहीं। उन्हें उसकी ईगो नूं चैलेंज किया, उसकी हौमे नूं चैलेंज किया, ते भावें दुख भी भोगने पे। तो उस दृढ़ता नूं गुरबाणी ने सलाया, वड्याया। फिर अखीर ते फरमाउंदे ने, नामा कहे भगत बस केशव, अजहूं बल के द्वार करो। नामदेव जी आखदे ने, वाहिगुरू तां जो तुसी कथा सुणाउंदे हो भाई, मैं तुहाडे हवाले चों ही गल करदा कि वाहिगुरू भगत दे इदां वास है, फिर भगती क्यों नहीं करते, फिर उहदे राह ते क्यों नहीं तुरदे? एक पासे ध्रुव जी दी, प्रहलाद जी दी ऐसियां उदाहरणां लैके तुसी फख्र करदे हो प्रहलाद उत्ते। तुहाडा आइडियल प्रहलाद हुंदा है, ध्रुव हुंदा है, हरनाकश नहीं हुंदा। तो फिर जिहड़े आइडियल हैं उन्हां वर्गी दृढ़ता, उन्हां वर्गा वैराग साडे जीवन च क्यों ना होवे? 52 रूप होए दे धरियो, अजहूं बल के द्वार खरो। बल राजे दे दरवाजे दे उत्ते जाके जदों 52 ने उन्होंने छल लिया छोटे बच्चे के रूप में, करों अढ़ाई धरती मांगी, 52 रूप बहाना है, क्यों पयाल जाए क्यों छलिए, जे बल रूप पछान है। जो पछाण लैंदा भी कौन है तो छलिया ना जाता, बेपछाणी दे विच ही छलिया गया। बंदा छलिया ही उदों जाता जदों कोई चीज़ बेपछाण हो। पर खैर उहदी भावना माड़ी नहीं सी, उन्हें आख्या मेरी छाती ते पैर रख, मैनूं भी विच ही धरती ते मिल लै। उन्हें अपना बोल पुगाया भी जो मंगोगे वो देंगा, बोल तो पिछे नहीं हटिया। मर्दां दे बोल ही उन्हां दी ताकत हुंदे ने ते उन्हां दा सत्कार हुंदा। ਉਹਦੇ बोल पगाउण ते ਉਹਦੀ सुची भावना करके ही परमेश्वर वाहिगुरू ਉਹਦਾ द्वारपाल हो गया। उस कथा मुताबक हजूर कहते हैं, हे भाई बचनहीन ना होवो। पहली गल है बचन करो अपनी समर्था मुताबक, जिन्नी साडी पाया औकात है उन्ना बचन करो, तो उस बचन ते तुल जाओ। यही ईमानदार ते मर्द आदमी की निशानी होंदी। असी बचन वो करते जो साडी समर्था च नहीं हुंदा, ते जिहड़ी जिथों तक साडी पावर ही नहीं उतों तक पहुँचना असी की हुंदा है। इस करके करते रहने, तोड़ते रहने, करते ये खेड जी बन गई। तो हाँ है तो हाँ करो, ना है तो ना करो। समर्था विच रह के अपनी पावर तो थोड़ा घट बचन करो, जिन्हों तुसी सौखियां पूरियां कर लो, तो जो कीता है उस कमिटमेंट नूं पूरियां करो। साहब कृपा करन, ये सुची भावना ते ऐसी ईमानदारी नूं ही मेरा वाहिगुरू भगती दी वड्डी निशानी मनदा है। और हजूर ने कहा है ऐसा कोई नहीं जिहड़ा उहदे राह दे उत्ते चल के सिरे नहीं लगदा, जिसदा कल्याण ते भला नहीं हुंदा। सतगुरु सबनां दा भला करन, दरों करो नामदान, गुरसिੱਖੀ जीवन की दात सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करन। आप सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हां ने इन्हां दीवानां विच हाज़रियां भरियां, सतगुरु की बाणी नाल सांझ बनाई। भुल चुक दी खिमा अदब सैद गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।